Hello, my dear students. How are you all? I hope you're all doing well. You have written the EIT exam first of this year, okay, which is the very first exam. So you already written it, and I hope that you have all done it very well. But in this session, we are going to discuss some of the questions which you might feel difficult, or you might have not understood why this answer is the correct one for that question. So all those type of questions I have taken. So nearly 20 questions are there in this session we are going to discuss now. Okay. So meanwhile, if you have any doubts, please make sure that you ask the respective teachers that who are available to you now with you. Okay. So you can ask them. So let's move ahead with the class. Okay. So the test code for this EIT was JS800424. ओके सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट तो आने वाले महीनों में और ज्यादा ये होने वाले हैं ओके सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन या so there's a first question on the screen. Okay, match the following columns and select the correct option. Okay, there are two columns, column 1 and column 2. Okay, in column 1 it says Panthera tigris, Mangifera indica, Musa domestica, Periplaneta americana and the Rana tigrina. Okay, and in that column 2 there are the common organisms which have to match suitably. Okay, so I'm giving you some time, take your time, and please choose an option in your mind and then we'll discuss regarding this. Okay, so choose a correct option based on like your understanding and then we'll discuss on that. Okay, yes, so I feel like I have given enough time. So there is nothing more to discuss on this, I feel like, because this is already a first chapter question which you have already read it so many times, you have written UT. So there is nothing much to understand here. Direct question, okay, direct NCERT से लिया हुआ क्वेश्चन है. आपको चार्ट पता होना चाहिए. एक चार्ट दिया है ना लिविंग वर्ल्ड में, वो चार्ट अगर आपको आ गया तो देन many things will be so much easier for you. Okay, so if you are not aware of others, see this is a very basic one. Okay, Mangifera indica is a mango. Okay, ये तो आपको पता ही है. Panthera tigris. Okay, the name has tiger in it. Okay, so this two you know. So based on this two you can select. So A4. Okay, so A4. अच्छा तो इन दोनों को you can cancel out. So A4 and then B1. Okay, so A4 B1 is there and then Musa domestica is again the housefly. Okay, this is also correct. Now you have to choose between D and E. Okay, so Periplaneta americana is a cockroach. Okay, वो क्या है बेटा? It is a cockroach. Clear? तो यहाँ पे मैं choose करती हूँ D as a 3. Okay, and E2 because Rana tigrina is a Indian frog. Okay, so B is the answer for this question. I hope you're all clear with that. Okay, so there are some extra things, but you have to learn them. Okay, so क्योंकि बेटा आपने already start कर लिया है understanding this examples and then scientific names. But if we go further in this 11th class, you are going to study another chapter of structural organization. Okay, there you will study about the cockroach, earthworm, and the frog. Okay, so वहां से आया हुआ question है ये. Okay, so B is the answer for that question. You can see here, Panthera tigris is a tiger, Mangifera indica is a mango, Musa domestica is a housefly, Periplaneta americana is a cockroach, and the Rana is Indian frog. ठीक है, चलो. Next question. Match column 1 with column 2 again same type of question for housefly classification. Okay, if you remember the housefly classification, then it is going to be a piece of cake for you. Okay, so select the correct option using the codes given below. Okay, there are column 1 and column 2, you have to choose among those. Okay, I'm going to give you like 15 seconds. Okay, look at the options, make sure which do you think is a correct one. Okay, usko dimag mein rakho. Yeah. All right, so I think I have given enough time for you. So now we will look into it and understand the concepts. See, the housefly, which is the common name
for Musa domestica, it has to be underlined, okay? Because अगर हाथ से लिखा हो तो underlined होना चाहिए. If it is a typed or a printed, then it has to be italicized. So see, this is not italicized; it's a mistake. But no problem. I'm underlining it for now. Okay. So sorry, what happened? Okay. So is of a phylum Arthropoda. Okay, it belongs to the phylum Arthropoda and classified under class Insecta. Okay, taxonomically, you can see it's a phylum Arthropoda, class Insecta, order Diptera, family Mucidae, genus Musa, and species Domestica. Okay, so अब आप यहाँ पे देख सकते हो, you can see here. Okay, so family is Mucidae. Okay, अभी भी हमने देखा family Mucidae and the order Diptera. Okay, class Insecta. Okay, phylum Arthropoda. Okay, so A is the correct option for this question. Clear? So this is again one of the direct question. Okay, but आप confuse हो जाते हो तो आपको confuse नहीं होना. You have to remember the chart very well so that you can answer these kind of questions very easily. Okay, chalo next question. Assertion. Okay, the assertion reason question. Assertion says consciousness or response to stimuli is a defining property of living organism. Reason says human beings is the only creature to possess self-consciousness. Okay, options are these, which are very common for assertion and reason options. So now I'm going to give you some 10 seconds, understand and choose an option and keep it in your mind. Okay, until we are going to discuss that. Okay, so assertion says, beta, consciousness or response to stimuli is a defining property of living organism. Okay, what is consciousness? Okay, देखो बेटा consciousness ये है कि आपको कुछ feel हो रहा है और you can say response to stimuli. Okay, somebody has called your name. Okay, so somebody called you, Gazala, what you're doing? I'm like getting attentive towards that. Okay, somebody called my name. Okay, what is that? That is a response to stimuli. What is stimuli? Calling out my name. Somebody called out my name and I'm responding to it. Okay, किसी ने तो मेरा नाम पुकारा. ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉन्शियसनेस. मतलब आई एम अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग्स. ओके, आई कैन सी द लाइट एंड ऑल दीज थिंग्स आर द कॉन्शियसनेस. Okay, and it is a defining property of living organism. Definitely true. Okay, you might be aware of the photoperiodism, all those things. ठीक है, तो लाइट के बेसिस पे ओके सर्केडियन रिदम होता है बॉडी में, कब फ्लावरिंग होनी चाहिए, कब क्या होना चाहिए, हार्मोन्स कब ज्यादा कब होने चाहिए. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सनलाइट. ओके, अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट. ओके, सारी चीजों के लिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी होता है. ओके, एंड देयर इज अ सेकेंड रीजन, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली क्रिएचर टू possess self consciousness. This is actually true statement because other animals cannot do the self consciousness. Okay, consciousness means what? Aware of the surroundings. Okay, sunlight, water, availability of the important things. But self consciousness is what? Okay, I'm thinking in my mind, आज मैं बिरयानी पकाऊंगी तो आज मैं किस तरीके से अलग बिरयानी पका सकती हूँ. मैं लखनवी पकाऊं या हैदराबादी बनाऊं या दिल्ली वाली बनाऊं, मुरादाबादी वाली बिरयानी, या फिर मैं लोकल जो केरला वाली थलेसीरी बिरयानी है वैसी बनाऊं. मतलब मैं ये सब मेरे दिमाग में सोच रही हूँ, फिर मैं एक आइडिया लगा रही हूँ. हाँ, पहले मैं प्याज तल लूंगी उसको. ओके, उसका बैरिस्टा बनाऊंगी. ये सारी चीजें तो वो क्या है बेटा? इट्स सेल्फ कॉन्शियसनेस. दिस थिंग्स आर हैपनिंग ऑन योर माइंड. ओके, सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन योर माइंड. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो आप इसको आराम से ऐसे कह सकते हो. ओके, तो इसका बेटा आप आंसर ऐसे पकड़ सकते हो कि कॉन्शियसनेस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, रीजन इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, तो आई कैन टेल यू ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट. हाँ, read the given statements and select the correct option. Okay, you have to read the statements here and select the correct option. So there are two statements, statement 1 and statement 2. Okay, so potato, brinjal are two different species but both belong to different genera. Okay, statement 2 says petunia and datura are placed in the family Solanaceae. Okay, again, one of the easy question, but I want you to pay attention here and understand which might be the correct option. Okay, yes. Okay,
Chalo, so I have given enough time for you guys. As you can see, potato and brinjal are two different species but belong to the same genera. Okay, not different but same. Hence, the statement one is wrong. Okay, तो statement एक गलत है. Now, petunia and datura are placed in the family Solanaceae. That's true. Okay, both belong to the same family, and that is Solanaceae. And this second statement is correct. So, which is the option that you are going to choose now? Okay, you're going to choose the option where it says statement one is incorrect and statement two is correct. Okay, so B is the answer for this question. Clear? Okay, so here you can see potato and brinjal are two different species, but both belong to the same genus, that is Solanum. Okay, clear? Chalo. So now identify the correct statements. Okay, you have to identify the correct statements here. Potato and brinjal are two different species. Both belong to the same genus. Okay, potato and brinjal are two different species, but both belong to the same genus. तो आपको क्या लगता है? Okay, सोचो. Then next sentence. The order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. In plants, classes with few similar characters are assigned to a higher category called phylum. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. A family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. So these are all the statements and you have to choose a correct answer from these options. Okay, in options से correct statement कौन से आपको select करना है. ठीक है, so I'm giving you some time. Look at the statements, look at the options and choose a correct one in your mind. Yes. Yeah. Just now, like 2 minutes ago, I was telling you that potato and brinjal are two different species but belong to same genus Solanum. Okay, so this is a correct statement. Okay, तो ये क्या है बेटा? ये बिल्कुल correct statement है. Okay, then the order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. This is also true. Okay, so Felidae is that family which has cats in it, and Canidae is the one which you will see the dogs there. Okay, तो ऑर्डर कार्निवोरा को बिलोंग करता है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट देन. In plants, classes with few similar characters are assigned to a higher category called division. Okay, so देखो बेटा, जब हम plants की बात करते हैं then it's higher category that is going to be assigned is division. But when we are talking about animals, that has to be phylum. Okay, plants के लिए division, animals के लिए phylum. तो यहाँ पे वो mistake हो गया है. When we are talking about plants, it had to be division, not the phylum. Hence option statement C is the incorrect statement. Okay, then let's look into the D. Each genus may have one or more specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. So this is true. Okay, this is totally true, beta, because every genus may have more than one specific epithet, which can also be called as different organisms, but they also have the morphological similarities. Hence, D is a correct statement. Okay, then last statement, family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus species. Okay, so this is also a correct statement. क्यों बेटा? क्योंकि आप देखो family has a group of related genera with still less number of similarities compared to the genus and species. Genus and species have more number of आप कह सकते हो यहाँ पे if you see. ओके, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. सो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, फैमिली में लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी है बट जीनस एंड स्पीशीज हैव मोर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. ओके बेटा, ये आपको पता होना चाहिए जब आप क्लासिफिकेशन में, हायरार्की में, फ्रॉम स्पीशीज इफ यू गो टू किंगडम. ओके, तो क्या होता है, नीचे की तरफ स्पीशीज की तरफ मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, बट इफ यू गो हायर the common characters decreases. Okay, the number of similarities decreases. So here genus and species is a lower part in the hierarchy, hence they have more similar common characters. Family has lesser one. Clear? So even E is also a correct statement. So here A, B, D, E are correct, only C is incorrect. A, B, okay, we can choose as A correct option.
ओके, सो यहाँ पे सी एक ही गलत है, तो हेंस वी आर चूजिंग ए एज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर. All right. So we'll choose the next question then. Look into the next question. Choose the wrong statement. Okay. You have to choose the wrong statement here. Please be careful. Okay. So what you are going to do, you will read the statements. They feel easier, but you miss out the question. Okay. वो आपको wrong statement पूछा है, correct statement नहीं, तो आप वहां पे गलत हो सकते हो. इसीलिए थोड़ा calm mind रख के, attentive mind रख के हमको करना होता है चीजें. ठीक है, चलो. सो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल और replicating itself. Reaction in test tube is metabolism. Metabolism is a defining feature of all living organisms. Okay, so I'm giving you some time. Take some time and then we'll discuss it. ओके, चूज द आंसर इन योर माइंड. ओके, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, चलो, आई एम गिविंग यू सम टाइम. या, okay, perfect. So I have given enough time. Now let's discuss here. Reproduction cannot be all inclusive defining character of living organism. Okay, what do you think of this statement? Okay, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, सो दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि बेटा कई लोग जिंदा हैं बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. ओके, सो ये आपको, आप एग्जांपल्स आप देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में दिया है, जैसे म्यूल. Okay, so mule is a combination of donkey and horse, and you get a mule of that. तो mule again वो reproduce नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा तो है ना. ओके, सो लिविंग के लिए वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कहलाती रिप्रोडक्शन, क्योंकि और ह्यूमंस में भी देखो बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं. ओके, आप उनके इनफर्टिलिटी का रीजन ही नहीं होता, कई डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता, बट स्टिल दे आर लिविंग, राइट. सो दैट इज वाई reproduction cannot be all inclusive defining characteristic of living organism. This is the correct statement. Okay, then no non-living object is capable of replicating itself. This is also correct statement. Okay, only living organism is able to replicate itself. Okay, non-living object cannot do the replication process. Okay, this is also a correct statement. Now, reaction in test tube is metabolism. No, this is wrong. Okay, metabolism happens inside a living body. Okay, वहां पे कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ कंपोनेंट्स होता है. ओके, मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है. तो हेंस रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब में होता है, इट्स जस्ट अ रिएक्शन, इट्स नॉट अ मेटाबॉलिज्म. ओके, सो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. देन मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस इज ऑल्सो ट्रू. यस, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म ही नहीं हुआ, बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर नहीं हुआ, एनर्जी नहीं बना, एटीपी नहीं हुआ, तो यार क्या ही होगा बॉडी में. ठीक है, मेड बी अ यूनिसेल्युलर और मेड बी अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर, metabolism is must and should to every living organism. Okay, so here only statement 3 is the wrong statement, hence I will choose C as the correct answer. Okay, 3 ही गलत है, तो C हमारा सही जवाब हो जाएगा. ठीक है, चलो. So here you can see in multicellular organisms reproduction refers to the progeny, production of progeny possessing features more or less similar to their parents. Okay, and we prefer to sexual reproduction. So invariably, implicitly, we prefer sexual reproduction. ठीक है, so that's clear. Now coming to the next question. X being a high category is the assemblage of families which exhibit a few characters. The Z characters are less in number as compared to different genera, including in family. Identify X, Y, Z. ओके, सो ये थोड़ा आपको लग सकता है कि डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. ओके, टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेट एन आंसर. ओके, चूज एन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू. ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. Okay, so here you can see X being, okay, a higher category of assemblage of families. ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑर्डर.
क्यों? क्योंकि आप जब देखते हो बेटा तो फैमिलीज के ऊपर क्या आता है, हायर कैटेगरी टू फैमिली, दैट इज ऑर्डर। ठीक है, फैमिली है तो फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर। ओके, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम या फिर डिवीजन आएगा, एंड देन किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी फाइलम या फिर डिवीजन, और यहाँ पे किंगडम। ओके, तो हियर यू कैन सी, तो फैमिली के ऊपर कौन आता है, फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर। ठीक है, सो हियर यू कैन सी, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage of family which exhibit few similar characters. ओके, सिमिलर कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ओके, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर characters are less in number as compared to different genera included in a family. That is true. Again, this is also true. See, मैंने आपको बताया था, है ना, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे ना हायरार्की, तो कॉमन फीचर्स जो है, सिमिलैरिटीज जो है वो कम होती है, नीचे की तरफ हायरार्की में ज्यादा होती है। सो हेंस यू कैन चूज इट एज अ सिमिलर ओनली। ओके, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही है, तो यू कैन चूज द ऑप्शन एज ए। सी, आपको अगर ये वाई एंड जेड समझ भी नहीं आया तो आपको एक से ही आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि फैमिली के ऊपर आता है हायर ऑर्डर में, सॉरी हायर कैटेगरी में ऑर्डर। तो आप यहाँ पे ऑर्डर देखो, कहीं कितने जगह पे ऑर्डर है, ओनली वन ऑप्शन हैज ऑर्डर, सो क्लिक दैट ऑप्शन। उसके साथ आप देख लो वाई एंड जेड ऑल्सो हैव सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जेड के आप देख सकते हो, जेड is a similar characters or less in number as compared to different genera. Okay, and then included in a family. समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे A would be the answer. Clear? चलो, so here you can see the statement once again. Order being higher category in the assemblage is the assemblage of families which exhibit few similar characters. I told you, right? So they order exhibit very few similar characters. Okay, the similar characters are less in number as compared to the different genera included in the family. Okay, तो family में ज्यादा more common होगा, okay, ज्यादा common characters होंगे, but as you see in the order it goes decreasing. Okay, मैंने आपको समझाया है, it is very easy. Okay, next question. Which of the following statements are not correct? Okay, आपको चूज करना है कि कौन से not correct statement है. Okay, lower the tax on, okay, so lower the tax on more the categories that the members within the taxon share. Order is the assemblage of genera which exhibit a few similar characters. Cat and dog are included in the same family, Felidae. Binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. Again, very easy question, directly taken from NCERT. Statements सारे NCERT के ही हैं. Okay, there is nothing very difficult here. Still, I'm going to give you some 10 seconds of time. Look into the statements and choose an option. ओके, चलो, तो अब हम देखते हैं बेटा, लोअर द टैक्सॉन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स देन द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। दैट्स सो ट्रू। ओके, तो जैसे आप टैक्सॉन में लोअर लोअर जाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे ज्यादा होंगे मोर देन द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनेरा which exhibit a few similar characters. So what do you think? Okay, so यहाँ पे देखो बेटा, family is the assemblage of genera, not order. Okay, order is the assemblage of family, not genera. ठीक है, तो family is the assemblage of genera. Hence ये wrong statement है. Okay, order is not the assemblage of genera. Family. Clear? Then cat and dog are included in the same family. Felidae? No, बिल्कुल नहीं. कैट को कैनिडे में, डॉग को फेलिडे में डाला है, तो 2 and 3 आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, ये बिल्कुल सही है. सो विच डू यू थिंक हियर आर द रॉन्ग वंस? ओके, 2 and 3 statements are wrong, 1 and 4 are correct. You have to choose the non-correct. So you are clicking on D here. Okay, it's very easy. You are clicking on D here. Okay, chalo. Next question. Viruses do not find any position in the five kingdom system because of. Okay, बेटा आपको पता है कि virus is not included in the under five kingdom classification.
ओके, विच इज गिवन बाय RH विटाकर। तो क्यों नहीं है? ओके, आपको यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव टू सेलेक्ट वन, और यू कैन से विच इज द मोर अप्रोप्रिएट वन। ओके, सो इन्फेक्शियस नेचर, हाँ इन्फेक्शियस नेचर तो है, बट इसकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म, ये भी बहुत सारों में है, नॉट जस्ट इन वायरस, यू विल सी दिस इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आल्सो। न्यूक्लियर प्रोटीन स्ट्रक्चर इज आल्सो फाउंड इन अदर सेल्स एंड स्ट्रक्चर। मल्टीप्लिकेशन इनसाइड होस्ट, दिस इज आल्सो सेम। बट नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ओके, जो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वायरसेस को 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन में ना डालने के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक बी इज द ओनली वन विच इज द पर्टिकुलर रीजन, specific reason for not putting the virus in the 5 kingdom classification. Okay, so here you can see 1 2 3 क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ओनली बी। ओके, क्योंकि इसके पास नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेल जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो अब क्या आप एक्सपेक्ट करोगे? ओके, क्या मेटाबॉलिज्म चलेगा, कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता, यू नो राइट। So viruses, when they're outside the host, they are not act as a cell. They do not have any metabolic activity. Only when they get inside a host, it gets active. Okay. Chalo. Next question. 1 to 7 question. Given below are two statements. You have to see these two statements and choose the correct options accordingly. So statement 1 say mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. Mycoplasma are bacteria with cell wall. Okay, so in the light of above statements, choose the most appropriate answer of the options given below. ठीक है, तो बहुत इजी है बेटा, इसमें ज्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे रही हूँ ज्यादा। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, दिस इज ट्रू। ओके, क्योंकि माइकोप्लाज्मा होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो बहुत बहुत छोटे होते हैं, तो आप बिल्कुल इसको करेक्ट स्टेटमेंट में कंसिडर कर सकते हो। Mycoplasma are bacteria with cell wall? No. Mycoplasma are without cell wall. They don't have cell wall. So hence statement 2 is wrong. Okay, तो आपको चूज करना है A here. Okay, क्यों? क्योंकि statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So option A is the correct answer. Okay, चलो, हाँ, so here you can see solution also says same. Okay, pass through less than 1 micron filter, correct, but bacteria, mycoplasma और bacteria without cell wall. Okay, तो यहाँ पे पूछा था with cell wall, that is definitely wrong, without cell wall होता है। ठीक है, हाँ, next question. Which one of the following statements about viruses is correct? Okay, तो viruses के बारे में कौन सा statement correct है? Okay, let me read out the options for you. Viruses possess their own metabolic system. Viruses contain either DNA or RNA. Viruses are facultative parasites. Viruses are readily killed by antibiotics. Yep. Tell me. So I'm giving you some time, but it's a very easy question, I feel. ठीक है, तो देखते हैं. So viruses possess their own metabolic system? Definitely not. Okay, they don't have that metabolism, because as I have told you just now, when viruses are not in the host, then they don't act as a living being. Okay, वो living ही नहीं होते बेटा। okay, तो living ही नहीं है तो metabolism कैसे होगा? Definitely wrong statement. Okay, viruses contain either DNA or RNA, this is true. Okay, it's a very important statement directly taken from NCERT. Viruses contain either DNA or RNA, but never both. दोनों हमेशा साथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे, आइदर डीएनए होगा या फिर आइदर आरएनए होगा। ठीक है, वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ये बिल्कुल, अब क्या कहते हैं इसको, ये रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज वायरसेस आर नेवर फैकल्टेटिव, दे आर ऑब्लिगेट। ओके, मैं आपको समझाती हूँ इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो हैं, जिसे समझ लो फैकल्टेटिव का मतलब। ठीक है, अब मैं हूं, मैं बोलूंगी कि मुझे बिरयानी खानी है। ओके, अब मैं बिरयानी ही खा सकती हूँ, मुझे बिरयानी खाने का ही मन है, खाऊंगी तो बिरयानी ही। सो इसको कहते हैं ऑब्लिगेट नेचर, मतलब यही हो चाहिए,
बिरयानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बिरयानी ही चाहिए, दिस इज ऑब्लिगेट नेचर, ये स्पेसिफिक नेचर होता है। बट फैकल्टेटिव क्या है, मैं पूछी कि हाँ मैम मुझे बिरयानी खानी है, फिर कोई बोलेगा कि नहीं आज बिरयानी नहीं बन पाएगा, दाल चावल खा लो, तो मैं दाल चावल पे भी स्विच हो सकती हूँ, सो दैट इज फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव इज नेवर एन ऑब्लिगेट। ओके, फैकल्टेटिव में उसको आप बताओ कि बिरयानी नहीं मिलेगी, दाल चावल मिलेगा, तुम खा लो, तो वो भी खा लेता है। बट ऑब्लिगेट नहीं, वो मर जाएगा, भूखा रह जाएगा, तड़प तड़प के तिलमिला जाएगा, लेकिन बिरयानी ही खाएगा, बिरयानी के अलावा कुछ नहीं खाएगा। दैट इज ऑब्लिगेट। समझ में आ गया आपको बात? तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, नॉट फैकल्टेटिव। ठीक है, देन वायरसेस आर रेडिली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सो वायरसेस पूरा एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं। ओके, कई वायरसेस के लिए हम वैक्सीनेशन भी लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एंटायरली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ बी है, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, नेवर बोथ, प्लीज डू रिमेम्बर। यहाँ पे देखो, viruses have either DNA or RNA as the genetic material. Viruses have RNA as genetic material that are known as retrovirus. Okay, viruses do not have their own metabolic machinery. We all know that. Viruses are obligate parasite and can multiply only within the living host cell. जब वो living host cell के अंदर है तभी वो multiply कर सकते हैं। Okay, viruses are unaffected by antibiotics. वो उनको एंटीबायोटिक से नहीं मर सकते, तो मैम एंटीबायोटिक से क्या मरेगा? देखो, कोई एक हार्मफुल पैथोजन जैसे बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आप मार सकते हो, कोई भी एक फंगल कोई भी एक इन्फेक्शन है तो उसको आप फाइट कर सकते हो, बट वायरल नो। वायरल इन्फेक्शंस एंड द वायरल डिसऑर्डर्स के लिए एंटीबायोटिक्स बिल्कुल काम नहीं करने वाला। ठीक है, चलो, सो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ। ओके, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए बेटा। ओके, प्लास्मोगैमी, कार्योगैमी। ठीक है, तो प्लास्मोगैमी क्या है? इज द फ्यूजन ऑफ, ऑप्शंस आर टू हैप्लॉइड सेल्स इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सो थिंक। ओके, आपको आपको लगेगा कि अरे ये तो इजी है, मैं आंसर कर लूंगा। देखो, थोड़ा सोचना पड़ता है, ऑप्शन को अच्छे से देखना पड़ता है। ठीक है, ऑल राइट। प्लास्मोगेमी, ठीक है। सो यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव स्टडीड दैट इन अ फंगाई पार्ट। ओके, जो फंगाई का पार्ट है इन द बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, देयर यू हैव कम अक्रॉस दिस टर्मिनोलॉजीज, कैरियोगैमी, प्लास्मोगैमी। ठीक है, डाइकैरियन, ओके, डाइकैरियोटिक फेज वो। ओके बेटा, तो यहाँ पे होता क्या है, समझ लो, यहाँ पे दो सेल्स हैं। ठीक है, तो दो सेल्स हैं, तो अब इन दो सेल्स के बीच में फ्यूजन होगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है प्लास्मोगेमी। दैट मीन्स बोथ देयर प्रोटोप्लाज्म्स आर गोइंग टू फ्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज होगा। ठीक है, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड है एंड टू न्यूक्लियर प्रेजेंट, तो सबसे पहले प्लास्मोगेमी होगा। अब प्लास्मोगेमी होने के बाद कार्योगेमी होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। बट उससे पहले एक फेज आता है, ओके, विच इज सीन इन बेसिडियोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स, विच इज कॉल्ड एज डाइकैरियन स्टेज। ओके, तो डाइकैरियन स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज्ड है बट न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं है। ओके, इट इज द डिलेड प्रोसेस। ओके, न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब क्या हो गया, समझ लो दोनों ही फ्यूज हो गए। ओके, दोनों ही जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्योगेमी। ओके, तो इसको हम बुलाते हैं बेटा कार्योगेमी। कार्यो रेफर्स टू न्यूक्लियस, गेमी रेफर्स टू फ्यूजन और मैरिज। ठीक है, तो प्लास्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन तो यहाँ पे हुआ है, तो इसीलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पहले प्लाज्मा फ्यूज होगा, फिर वो डाइकैरियोटिक स्टेज में जाएगा, फिर जाएगा न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस, है ना? इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बेटा। Here you can see, in the first stage of sexual reproduction, in which cytoplasm of the two sex cells fuse with each other, the nuclei of the same sex cells come close to each other but do not fuse.
ठीक है, दिस रिजल्टिंग सेल बिकम्स अ बाइन्यूक्लिएट और डाइकैरियन। डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद जाके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, match column 1 with column 2 and choose the correct options. So here you have to again match the column 1 with column 2. Let me tell you something. So these chapters, living world, biological classification, plant kingdom and animal kingdom, ये जो चार चैप्टर्स है ना, इन चारों चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस लाइक मैचिंग द कॉलम 1 विद कॉलम 2 बहुत आते हैं। लिटरली बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही सवाल पूछेंगे तो दूसरा रह जाएगा। तो ये क्या करेंगे बेटा, एक वहां से ले लिए, एक यहाँ से ले लिए, अलग अलग जगह से लेके एक क्वेश्चन में चिपका दिए। ठीक है, तो आपको अभी सेलेक्ट करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। आई नो ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम। आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स। लिसन टू योर हार्ट और बताइए, दिल में रखिए कि कौन सा ऑप्शन है, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। So it's not like anything new. It's the same. आपकी एनसीईआरटी में है। ओके, ऐसे एकदम कोई नई चीज भी नहीं है, एनसीईआरटी में है, बट आपको पता होना चाहिए बस। कॉलम 1 विथ कॉलम 2। Okay, so I have given enough time. Now let us see here. Okay, it's very simple. Just you have to match. Okay, तो फंगई में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, Aspergillus belongs to Ascomycetes, Puccinia belong to Basidiomycetes, Alternaria is a Deuteromycetes and the Rhizopus is a Phycomycetes। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन है, एकदम आपको मैच करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको याद नहीं है तो ये आपके मार्क्स निकाल देगा। ओके, इट्स जस्ट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए बार बार रिवीजन की जरूरत लगती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। चलो तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो आई डोंट नो व्हाई देयर आर नो ऑप्शंस हियर, तो इसमें ऑप्शंस होने चाहिए। ओके, तो कोई बात नहीं, चलो हमको पता तो चल गया ना कौन सा है, कौन सा मैचिंग वाला है, so दैट इज एनफ। ओके, नाउ we'll go to the next question. Choose the wrong statement. You have to choose the wrong statement here. Morels and truffles are poisonous mushrooms. Yeast is unicellular and useful in fermentation. Penicillium is multicellular and produces antibiotics. Neurospora is used in the study of biochemical genetics. Okay, so please take some time. Okay, again, all are direct questions. See, जितने भी एआईटी में क्वेश्चंस है ना, मैं इतना गारंटी से बता सकती हूँ कोई भी सिलेबस के बाहर नहीं है, सारा सिलेबस में ही है। बट आपको वो इजी और टफ इस बेसिस पे लगेगा कि आप कितना क्लियर हो आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से। अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो, सारे स्टेटमेंट्स आपको समझ में आते हैं, सारा सेंटेंसेस आपको क्लियर है, कौन से पेज में, कौन से पैराग्राफ में, कौन से स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगर आपको इतना पता चल गया ना, तो दैट्स मोर देन एनफ। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, बायोलॉजी में जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे अटक जाते हैं लोग। चाहे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, लेकिन एक एक स्टेटमेंट होता है कंफ्यूजिंग होता है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, सो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब हम देखते हैं एक एक करके। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, बिल्कुल नहीं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल मशरूम्स। These are edible mushrooms and they are one of the highly expensive mushrooms that are found in the nature। ठीक है, तो यूजुअली हम इंडिया में इसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, बट इफ यू गो टू जापान, चाइना एंड कोरिया, दीज पीपल दे लव मॉरल्स एंड ट्रफल्स, दे कंज्यूम दीज मशरूम्स। ओके, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मॉरल्स तो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, बट बोथ ऑफ देम आर एडिबल मशरूम्स, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। विल चेक द अदर्स ऑल्सो। ईस्ट इज यूनिसेल्युलर, so true. Useful in fermentation, that is also true, because I have told you yeast is the only fungi which is unicellular but not filamentous। unicellular है and filamentous नहीं है। बट अगर आप देखो फंगाई, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो मल्टी सेलुलर होते हैं एंड फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, so this used yeast is used in the bakeries।
ओके, फर्मेंटेशन करने के लिए, ओके, पफ अप करने के लिए। आप जो ब्रेड बेक करते हो ना, ब्रेड को बेक करने से पहले उसको आटे में डाल के प्रूफिंग के लिए छोड़ते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो होल्स बनाती है, तो वो फ्लफी नेचर आता है ब्रेड में। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन पेंसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, डेफिनेटली ट्रू बेटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सबसे पहले पेंसिलियम नोटाटम ही तो था जिससे हमने एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया था, एंड कितने लोगों की जान बची थी। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज अगेन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, आप सोचो ही मत, एनसीईआरटी से निकाला हुआ क्वेश्चन है ये। तो डी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल मशरूम्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मॉरल्स और एस्कोमाइसिड्स विद एडिबल एस्कोकार्प हैव द फ्रेशली स्पॉन्जी लाइक कोनिकल कैप्स और पाइलियस। ओके, और स्टॉक लाइक टाइप कॉल्ड मोर्शेल्ला एस्क्युलेंटा। ओके, जो ट्रफल्स हैं वो भी एडिबल मेंबर्स हैं, वो भी एस्कोमाइसिड से ही बिलोंग करते हैं। ओके, एंड दे आर ऑल्सो एडिबल। ठीक है, सो यहाँ पे सब ट्यूबर, ट्यूबर लाइक सबटेरेनियन एस्कोकार्प्स that are often dug out with the help of trained dogs and pigs. Okay, example tuber aestivum. Clear? Chalo, so A is the answer. Next question. 146. Match the following. Select the correct combinations from the options given. अगेन मैंने बोला ना, देखो कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको अब जब पढ़ते हो ना, आपको क्लियर होता है कि हाँ भाई, यूग्लिनॉइड्स में ये चीज है, प्रोटोजोवंस में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यू नो दैट। बट देखो जब ऐसे आ जाता है ना एग्जाम्पल के साथ, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए animal kingdom, plant kingdom, biological classification, living world, very important with respect to examples, charts and all that. Okay, so I'm going to give you some time here. Okay, मैं 15 सेकेंड दे रही हूँ। Please choose a correct option according to you and keep it in mind, and then we'll discuss. Okay, so I have given enough time. इससे ज्यादा टाइम क्या ही दूंगी मैं। ओके, तो अब देख लो यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट देख लो सोल्यूशन में, क्राइजोफाइट्स आर डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर यू नो ग्वानिलॉक्स। ओके, सो अब देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो ये जो है ये एकदम से रेड, जो वाटर बॉडी है उसका देता है, जिसको रेड टाइड कहते हैं। ये सारी चीजें तुम याद रखा करो। ठीक है, इससे इजी हो जाती हैं things to remember. Okay, then euglenoids, that is euglena, protozoan, paramecium, so easy. Okay, आप ना को ना अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो इतना तो तुम देख लो, यहाँ पे यूग्लिनॉइड यूग्लिना है, ये तो सिंपल है। ओके, दैट इज C2। अब C2 कितने में है देखो, A एंड B में है, तो C एंड D को तुम हटा ही दो, ये तो सबसे इजी है ना, सबसे इजी है। एंड प्रोटोजोवन पैरामीशियम है यार, ये तो सबको ही याद रहता है। ठीक है, तो पैरामीशियम इज अ प्रोटोजोवन, ओके, विच इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोवन। ओके, प्रोटोजोन में भी टाइप्स हैं वहां पे भी। ठीक है, सो फ्लैजेलेटेड, अमीबॉइड, सीलिएटेड, ये सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे जो पैरामीशियम है वो सीलिएटेड है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होता है कि D1, तो D1 किधर है देखो। ओके, C2, D1, तो B इज द करेक्ट आंसर, ए को हटाओ। ओके, सो 146 का आंसर है बी। सच एन इजी क्वेश्चन। So this is how you have to cancel out the options and pick the correct one. Okay, chalo, next question. Secondary nucleus is fertilized by male gamete to form. Okay, ये थोड़ा आपको फिर वो प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है ये। Options are endosperm, embryo, seed, zygote. Okay, so about this you're going to study this in the 12th class. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे और ज्यादा डिटेल में आप पढ़ने वाले हो। बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा बेसिक्स दिया गया है प्लांट किंगडम में, उतना जान लो तो भी काफी है। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, लुक इनटू द ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट वन। ओके, सो बेटा इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स में
Okay, so angiosperms has a special type of fertilization. We call it as a double fertilization. Okay, एंजियोस्पर्म्स में होती है डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मैम? देखो बेटा, दो फर्टिलाइजेशन होती हैं. एक को हम बुलाते हैं सिंगेमी. ओके, वन इज कॉल्ड एज सिंगेमी एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. ओके, सो ट्रिपल फ्यूजन. सो इन दोनों को मिला के नाम दिया गया है एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो सिंगेमी में क्या होता है? ओके बेटा, एक आपको पता होना चाहिए, वन पोलन ग्रेन हैज टू मेल गैमेट्स. ओके, तो एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होती हैं एंड एक एम्ब्रियो सैक में वन एग एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है. तो अब ये जो सिंगेमी में क्या होता है बेटा, एक मेल गैमेट. ओके, सो दिस वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल. ओके, तो ये एक्सेल के साथ फ्यूज होता है और ये एक्सेल के साथ फ्यूज होके बनाता है जाइगोट. ओके, जाइगोट इज 2n. ओके, सो मेल गैमेट इज n, एग इज n, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो 2n बनेगा. ठीक है. ओके, डिप्लॉयड बनेगा. सो नाउ ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा बेटा, अगेन वन मेल गैमेट, क्योंकि दो मेल गैमेट्स थे ना एक पोलन ग्रेन से, तो वन मेल गैमेट इट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस. ओके, और द सेंट्रल न्यूक्लियर या फिर सेंटर सेल, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको. ठीक है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूजन करेगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूजन करने के बाद बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेन. तो पेन से ये बनेगा एंडोस्पर्म और ये जो है ना ये ट्रिप्लॉइड होता है. ओके, सो दिस इज ट्रिप्लॉइड. अब पेन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा. ठीक है, तो समझ में आ रहा है. तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस वन मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके पेन बनाता है विच विल गिव द एंडोस्पर्म. इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. ट्रिपल फ्यूजन इज वन ऑफ द प्रोसेस दैट इज फाउंड इन द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. ठीक है, तो वेरी इजी है, ए इज द आंसर. सेकेंडरी न्यूक्लियस is fertilized by male gamete to form endosperm. क्लियर. इसके बाद में आप डिटेल में नेक्स्ट ईयर्स में पढ़ोगे बेटा. ठीक है, 12th में आके आप पढ़ोगे. देखो यहाँ पे भी लिखा है, इन एंजियोस्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फर्टिलाइज्ड बाय वन मेल गैमेट टू फॉर्म एंडोस्पर्म. दिस प्रोसेस इज पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन where one sperm fertilizes the egg to form zygote, the other sperm fertilizes the central cell to form the triple endosperm. क्लियर. विच प्रोवाइड्स द नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, जो जाइगोट है वो फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कौन नरिशमेंट देता है, ये एंडोस्पर्म. सो दिस एंडोस्पर्म विल गिव द नरिशमेंट फॉर दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट हैपेंड. ओके, सो मैच वन कॉलम वन विथ कॉलम टू. ओके, तो यहाँ पे दो कॉलम्स को आपको मैच करना है. सो कॉलम वन हैज अगार, algin, carrageen, chlorella, and spirulina. Column 2 has these many parts. Single cell protein used as food supplement by space travelers, very easy. Red algae, again very easy. Brown algae, very easy. Gelidium gracilaria. ओके, दो तो बिल्कुल इजी है, दो से आप आंसर निकाल सकते हो. ओके, स्टिल आई एम गिविंग यू सम टाइम, आई विल गिव यू सम 15 seconds. चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू. यस. ओके, सो अगार इज जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये हम सबको पता है. ठीक है, ये तो हम सबको पता है. देन क्लोरेला एंड स्पिरुलिना, सॉरी, इट इज वन. ये दो तो मतलब आप आंख बंद करके भी बता सकते हो, क्योंकि स्पिरुलिना एंड क्लोरेला आर द सिंगल सेल प्रोटीन. ओके, यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, जो जेलिडियम है, जेली, अगार. ओके, एंड देन आपको आएगा बेटा आर्जिन. ओके, आर्जिन इज ब्राउन algae एंड कैरागीन इज रेड algae. ठीक है, तो अब आप ऑप्शंस देख लो. A1 बिल्कुल नहीं, A2 बिल्कुल नहीं, हाँ A4. ओके, अगार जेलिडियम 4. अच्छा, चलो तो आंसर मिल ही गया. ओके, अगार से आपका आंसर मिल गया है कि जेलिडियम ग्रासिलेरिया है. B3 है अल्जिन ब्राउन algae, बिल्कुल करेक्ट. कैरेगिन रेड algae है. डी क्लोरेला एंड स्पिरुलिना इज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, टेंशन की बात तो बिल्कुल है ही नहीं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी द सोल्यूशन हियर.
Agar is a gelatinous substance obtained from certain red seaweeds and used in biological culture medium as a thickener in foods. आप जो खाते हो ना जैम्स एंड जेलीज, तो ये कैसे बनते हैं बेटा? ये अगार से ही बनते हैं. ओके. Then alginic acid is called algin or alginate, is an anionic polysaccharide distributed widely in the cell walls of brown algae. Okay, so where through binding with water it forms a viscous gum. ठीक है, ये एक viscous gum बनाता है. Then carrageen is a colloid, okay, extracted from various red algae as Irish moss. इसको आप Irish moss भी कह सकते हो. ठीक है, and used especially as stabilizing and thickening agent. Chlorella and spirulina are unicellular algae rich in proteins and are used as food supplements by space travelers. ठीक है, तो very easy. यहाँ पे आंसर हमको पता चल गया बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following groups of plants is being described in the given statement? तो आप स्टेटमेंट्स देख के बताना है आपको कि कौन सा प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जा रही है. ओके, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड. Asexual reproduction takes place by fermentation of thalli by formation of specialized structure called gemma. Okay, the sporophyte is differentiated into foot, seta, and capsule. They grow usually in moist and shady habitats. Okay, so options में है liverwort, mosses, fern, and then gymnosperm. बिल्कुल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तो नहीं है. ओके, ये तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे थायराइड बॉडी की बात हो रही है. जिम्नो एंड एंजियो आर वेरी बिग बिग प्लांट्स. ओके, उनको हटा दो कैटेगरी से. तो अगर इनको भी हटा दिया तो विच वन डू यू थिंक इज द आंसर? आई एम गोइंग टू गिव यू 15 seconds ऑफ टाइम. प्लीज सेलेक्ट द आंसर एंड कीप इट इन माइंड. सोचो, प्लांट बॉडी थैलाइड है. Asexual reproduction takes place by fermentation of thalli. Sorry, fragmentation, not fermentation. Fragmentation में क्या होता है, एक पार्ट टूट के अलग हो गया, वो जाके एक इंडिविजुअल प्लांट बॉडी बनाता है. ठीक है, एंड देन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमे. याद आ रहा है? मर्केंशिया, रिक्सिया. ठीक है, सो आपको वो याद आना चाहिए. And sporophyte is differentiated into fruit, seta, and capsule. They grow usually in moist and shady habitats. ठीक है, तो बिल्कुल फर्न भी नहीं है मैं कहूँ तो. ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्न में आते हैं हमारे अडियांटम. ओके, अडियांटम आता है, वो बिल्कुल नहीं है. ओके, तो इसको हटा लो. अब लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बीच में आपको चूज करना है. एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, तो इसमें इतना घबराने वाली बात भी कोई नहीं है. ओके, सो इट्स अ वेरी इजी. अब यहाँ पे देख लो आप सोल्यूशन. लिवरवर्ट्स बिलोंग टू ब्रायोफाइट्स विच आर फ्लावरलेस. ओके, so spore producing plants with a spore produced in small capsules. Okay, ऐसे small small capsules होते हैं, तो उसके अंदर होते हैं spore producing structures. Okay, liverworts are very small green terrestrial plants. They do not have true roots. मतलब वो true root stem और leaf नहीं है, वो root like, leaf like, stem like structures हैं. ठीक है, तो fruit जो है वो root like है, जो सीटा है वो stem like है, एंड कैप्सूल जो है वो लीफ लाइक है. ऐसा आप समझ सकते हो. ठीक है, then instead they have an above ground leaf like structures known as thallus and underground structures known as rhizoids. ठीक है, तो rhizoids are the root like. Now most liverworts are found in more moist environment and tend to be less resistant to desiccation. अब बेटा desiccation क्या है? बेटा ड्राइंग आउट समझ लो. अब ब्रायोफाइट है नेचर में. ठीक है, अब उस नेचर में जो ब्रायोफाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके रिप्रोडक्शन के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए मॉइस्चर हो, मॉइस्ट कंडीशन हो. जब मॉइस्ट कंडीशंस नहीं होते हैं तो तब क्या होता है बेटा? वो ड्राई आउट हो जाता है. डेसिकेशन मीन्स ड्राइंग आउट, जहाँ पे बिल्कुल स्केर्सिटी होती है मॉइस्चर की. ठीक है, तो ये जो है बेटा दीज आर लेस रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन. मतलब इनको ड्राई कराना बहुत ही मुश्किल का काम है. ठीक है, सो देन अदर रिलेटिव्स लाइक मॉसेस. तो लिवरवर्ट्स को मॉसेस के कंपैरिजन में ड्राई कराना थोड़ा मुश्किल काम होता है. एंड दीज लाइक मॉसेस मेनी स्पीशीज ऑफ लिवरवर्ट्स रिप्रोड्यूस बाय गेमे. ओके, गेम्मा कब होता है? ओके, आपको याद होगा बेटा, आपके एनसीईआरटी में है मर्केंशिया का डायग्राम ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे राइजोइड्स होते हैं. ओके, एंड यहाँ पे होते हैं गेम्मा कप. ठीक है, ऐसे करके. सो दिस इंडिविजुअल गम्मा कप हैज द एबिलिटी टू मेक एन होल प्लांट. ठीक है, सो ये आपको पता चल गया, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि लिवरवर्ट इज द आंसर, नॉट द मॉस. ठीक है,
So liverwort can be the correct answer. So हाँ, चलो तो अब लास्ट एक क्वेश्चन है, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स. तो आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिया है, आपको पढ़ना है. एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स. Moses lichens are first organisms to colonize a bare rock. Selaginella is a homosporous pteridophyte. Coralloid roots in cycads have mycorrhiza. Main plant body in bryophytes is gametophytic, whereas in pteridophytes it is sporophytic. In gymnosperms, male and female gametophytes are present within sporangia located on sporophyte. तो ऑप्शंस यहाँ पे है स्टेटमेंट का. आई एम गोइंग टू गिव यू 20 सेकेंड्स. 20 सेकेंड्स में आपको माइंड में पता लगा लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ओके, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स वंस अगेन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. यस. ओके, so if you see here beta, mosses and lichens are first organisms to colonize a bare rock. This is so true. ये बिल्कुल ठीक बात है. ओके, दिस इज ट्रू. ओके, नाउ सेलाजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. नो, ये गलत बात है भाई, गलत बात है. ओके, देन सो कोरोलाइड रूट्स इन साइकास. ओके, सो कोरोलाइड रूट इन साइकास हैव मिकोराइजा. अब ये आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? Okay, coralloid roots in cycas, they do not have mycorrhiza beta, they have the cyanobacteria. ठहरो, यहाँ पे solution में होगा, मैं आपको दिखाती हूँ. Okay, so here if you see, thalli of lichens can adhere to the surface of rock and absorb moisture. ये बिल्कुल ठीक है. And they are the first to colonize on the bare rocks. हाँ, बिल्कुल सही है. Okay, so these lichens produce acids and corrode the rock, and their thalli correct wind blown soil particles among them that help the formation of thin film of soil. ओके, ये किसके बारे में बात हो रही है? लाइकेंस के बारे में बात हो रही है. ठीक है, एंड देन यहाँ पे खत्म हो गया. अब देखो, द अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट्स द गेमेटोफाइट एंड द शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइट अकर्स एज अ पैरासाइट. Okay, parasite on the gametophyte. And in gymnosperms, leafy green sporophyte generates cone containing male and female gametophytes. Okay, तो यहाँ पे आ गया देखो coralloid root. Coralloid root और the symbiotic association okay होता है cycas के roots में. Okay, किन के बीच में होता है? cycas roots and the cyanobacteria, that is blue green algae, which fix the nitrogen. Okay, तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, सेलाजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आप ये कर सकते हो. ठीक है ना. कोरोलाइड रूट्स हैव मिकोरिजा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नहीं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गेमेटोफाइटिक, वेराज टेरिडोफाइट में ये स्पोरोफाइटिक है. ये बिल्कुल ठीक है. ओके, ये भी बिल्कुल सही बात है. समझ में आ रही है मेरी बात? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ, so in gymnosperms, male and female gametophytes are present within sporangia located on a sporocyte. ये भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, so all these statements we have rectified. ठीक है, हमने देख लिया है. तो इससे अब हम क्या पता लगा सकते हैं? ओके, कि दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही गलत हैं एंड बाकी सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. तो अब करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं? 1, 4, 5. ओके, तो 1, 4, 5 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो ऑप्शन ए. कौन से दो स्टेटमेंट गलत है? 2 and 3 आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स. ओके, सो आंसर इज ए. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, so that's all in this discussion session. So these questions, I have taken 20 questions from the AIT 1. Okay, so if you have still any doubts, please make sure that you talk with your teachers and get the answers for them. Okay, and all the best for the next AIT. Till then, take care. Bye bye.